modul moșe. Na te samba am văzut doțoc mi chimi sunt sama sunt experiment. De te samba goski fa dunia ki se ata konshut pa zona las bamba yendi. صرف اقسام نچوڑ بسے نری خیال ازو ناران چوکھن کو ڈاکٹر رفیوتی کا موز کوئی ہفتے سجیشن کو بہترین ہو. ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس مندوبین کے انتخابات کے بعد آج مجلس بزنس کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں مجلس مندوبین کے اراکین شرکت کر رہے ہیں. اس وقت ہم امام خمینی ٹاور میں موجود ہیں، جہاں پہ بڑی تعداد میں مندوبین نے شرکت کی ہے اور انتخابات اور کچھ ہی دیر بعد انتخابات کا عمل شروع کیا جائے گا. پیش ہے وائس آف لداخ کی رپورٹ. Yandı gelmeyin, yandı gelmeyin. Dünya pulak dünya maşona hareket tagare. Yan param değil. Yan param değil. Param yan param değil. O diye de geldi. Pani yok. Satan da olacak. Satan şuna diyecek. Bir şahsiyetden بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے سینئر رکن حاجی محمد حسین. سر کیا کہیں گے آج کے اس انتخابات کو لے کر، اور کچھ تفصیل بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ پروسیس کیا ہے، مندوبین کے انتخابات کس طرح عمل میں لایا گیا، اور آج یہ بزنس کمیٹی ان کا کیا رول رہے گا، کیا فعالیت رہے گا، آئندہ یہ کس طرح سے کام کرے گا، ان پہ تھوڑا سا تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج آئی کے ایم ٹی کرگل کے مجلس مندوبین کا پہلا اجلاس ہوا، اور جس میں آئندہ مجلس کی کارروائی چلانے کے لیے آئین کے روح سے جو دستور العمل ہے آئی کمیٹی کا، اس کے روح سے ایک کمیٹی تشکیل دیا جاتا ہے جو اس مجلس کے بزنس کو چلائے گا. تو اس کو بزنس کمیٹی کا نام دیا گیا ہے. تو اس کا الیکشن جو ہے آج یہاں پہ ہو رہا ہے. تو آپ کے انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ سال 2023 میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے جو قیادت اعلیٰ ہے نگران کونسل، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تنظیم کے لیے جو پچھلا دستور العمل تھا اس کو ریوائز کیا، کیونکہ تنظیم کو بحیثیت ایک ٹرسٹ جو ہے وہ سرکاری طور پر جو مطلب قانونی طور پر اس کو رجسٹر بھی ہوا تھا. تو اس سلسلے کے بعد پھر نگران کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ دستور العمل کو ری ڈرافٹ کیا جائے، دوبارہ سے لکھا جائے. تو انہوں نے ایک کمیٹی اس وقت تشکیل دی. اس کمیٹی میں علماء بھی تھے اور باقی دانشور بھی تھے، ماہرین بھی تھے. تو اس کمیٹی نے تقریباً 4-5 مہینے اس مسودے پہ کام کیا، اور
बफज़ल इलाही इन्होंने एक बेहतरीन एक दस्तूरुल अमल बना के निगरान कौंसल को पेश किया, जिसको निगरान कौंसल ने अप्रूव करके फिर इसको अपने अखबार वॉइस ऑफ लद्दाख के ज़रिए इसको नशर भी किया। और इस दस्तूर के मुताबिक ये है कि तंजीम का जो है बुनियादी ढांचा और इकाई जो है वो गाँव तक ग्रास रूट तक फैलाया गया है, जिसमें सबसे ज़रूरी है महल्ला कमेटी जो एक बुनियादी इकाई है, और इसके बाद विलेज कमेटी, फिर ब्लॉक कमेटी से। तो 2024 के बाद 2025 के दरमियान जो है ये इलेक्शंस का एक सिलसिला शुरू किया हर गांव में, हर महल्ले में। तो हर महल्ले से एक कमेटी आई कमेटी का बना, जिसके सदर को जो है वो मजलिस मंदूब जो मरकज़ में एक असम्बली बनाया गया, उसका मेंबर बनाया गया जो महल्ले का सदर है। तो इसी तरह विलेज का भी एक कमेटी बना है, और इसी तरह विलेज से उलमा जो है उनका भी एक नुमाइंदा जो है इस असम्बली में लाया है। और इसके अलावा दस्तूर के मुताबिक इस मजलिस में दानिश्वर कुछ 6-7 हैं, और जो माहिरीन हैं यहाँ पे जो जिनका जो है सोसाइटी अक्रॉस द सोसाइटी जो है कंट्रीब्यूशन है या वो माहिर हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा उलमा जो है जितने भी उलमा हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे मंदूबीन में नुमाइंदे कोई 30 नुमाइंदे से ज़्यादा उनका है। और इसके अलावा जो है जो हमारे बुनियान गुजार हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स से भी इसमें जितने भी आज माशाल्लाह यहाँ पे बक़ीद हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो दस्तूर के मुताबिक वो भी इस असम्बली का जिससे हम मजलिस मंदूबीन कहते हैं इसका मेंबर बनता है। तो इस तरह से अभी तक जो इलेक्शंस प्रोसेस हुआ है उसमें 208 मंदूबीन यहाँ पे तश्कील दिया है, जिनको निगरान कौंसल ने दस्तूर के मुताबिक यहाँ जमा करके उनका जो है उनको हल्फ दिलाया है। और हल्फ और राजदारी के बाद आज जो है इनका पहला इजलास बुलाया था, जिसमें इनको दस्तूर के मुताबिक जो बिज़नेस कमेटी है उसको इन्होंने चुनाव करना है, जिसमें बुनियान गुजार मेंबर 2 हैं, और दानिश्वर तबके से 2 हैं, और उलमा तबके से 3 हैं। तो कुल 7 ये एक कमेटी होगा जो पावरफुल कमेटी है, जो इस मजलिस मंदूब को चलाएंगे। इसके डे टू डे जो इनके अजलास जो है वो कब बुलाना है, क्या करना है, वो फैसला लेंगे। इसके अलावा वो आई कमेटी के बाकी जो अहम उमूर हैं उन पर भी फैसला वो करेंगे। इसके अलावा जो निगरान कौंसल जो आला यहाँ का निगरान कौंसल जो निगरान होता है, जिसमें रूहानियों का जो ज़्यादा से होता है, तो इस निगरान कौंसल को भी इंतखाब करेंगे ये हमारी जो मजलिस मंदूब है ये। और इसका पैनल जो है ये हमारा जो अभी आज कमेटी निकाल रहे हैं, वो एक पैनल जो है दस्तूर दे के उनका इलेक्शन जो है निगरान कौंसल का वही करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज हमारा जो क्वारम के मुताबिक 208 में से 113-14 जो है मंदूब आना ज़रूरी था, यानी 55% जो है मंदूब का हाजिर होना इजलास के लिए ज़रूरी होता है। तो आज माशाल्लाह ये 130-35 मेंबर यहाँ जमा हुए और क्वारम भी पूरा हुआ, लिहाजा हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो है निगरान कौंसल ने इस कमेटी का इलेक्शन जो है ये मुनक़िद किया है। तो इंशाअल्लाह इसमें से बेहतरीन लोग जो साथ चुन के आएंगे वो इस मजलिस को आगे चलाएंगे। शुक्रिया। हमारे टोटल मंदूबीन में से जो 208 हैं उसमें से तकरीबन जिन्होंने हलफ लिया है वो 160 हैं, और इस 160 में से
जो आज हाजिर हुए हैं वो 135 हैं, और इस 135 में से जिन हजरात ने वोट दी है 124 है, यानी टोटल वोट आ गया है 867, 868। और उसमें आप जानते हैं हमारे बिजनेस कमेटी के 7 मेंबर इलेक्ट करने थे, 3 रूहानी, 2 फाउंडर मेंबर्स बुनियाद गुजार, 2 दानिश्वर। और अभी जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट्स ने फाइनल लिस्ट जो मेरे पास दी है, उस फाइनल लिस्ट के हिसाब से मैं रूहानियों के हिसाब से चलूँगा। उस हिसाब से जिन 3 कैंडिडेट ने हाईएस्ट वोट लिया है, टोटल 5 का यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। फिर इसके बाद आपके फाउंडर मेंबर्स 4 का दे दिया है, और आपके जो दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका 4 का दे दिया है। उन 5, 4, 4 का में जो टोटल वोट सिक्योर किया है, उनको वोट मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शेख हुसैन लुत्फ़ी, इनको टोटल वोट मिला है 124 में से 65। शेख हमीद नासरी, इनको जो टोटल वोट मिला है 42। तीसरा शेख बशीर शाकिरी, इनको जो टोटल वोट मिला है वो है 49। शेख खादिम सादिकी, इनको वोट मिला है 27। शेख मोहम्मद अंसारी, इनको वोट मिला है 23। तो इसमें से 3 कैंडिडेट जिसको आप लोगों ने वोट दे के इलेक्ट किया है वो है शेख मोहम्मद हुसैन लुत्फ़ी, शेख बशीर शाकिरी, ये वोट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, शेख हमीद नासिरी। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदाहुम वहफ़ज़ इमामना अल-खामना वंसुर जयूश अल-मुस्लिमीन। फाउंडर मेंबर्स में पहले असगर अली करबलाई मेरा नाम है, इसके बाद है शेख मुहक्किक साहब, इसके बाद है शेख हाजी निसार गोमा करगिल, इसके बाद है हाजी हसन लाल। करबलाई को मिला है वोट 118, शेख मुहक्किक साहब को मिला है 60, हाजी निसार गोमा को मिला है 29, हाजी हसन लाल को मिला है 25, और उसमें 2 जो इलेक्ट हुए हैं वो करबलाई और शेख मुहक्किक साहब हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदाहुम वहफ़ज़ इमामना अल-खामना वंसुर जयूश अल-मुस्लिमीन। इंटेलेक्चुअल्स में से जो 4 जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, मैं इनका नाम आपको पढ़ लेता हूँ। डॉक्टर विलायत अली है, हाजी फिदा वज़ीर है, हाजी अली शारगोल है, हाजी हुसैन पशकुम है। और उसमें से डॉक्टर विलायत अली साहब को मिला है 65 वोट, हाजी फिदा वज़ीर साहब को मिला है 64 वोट, हाजी अली शारगोल को मिला है 20 वोट, हाजी हुसैन पशकुम को मिला है 11 वोट। और इस तरीके से इंटेलेक्चुअल 4 में से जो हाईएस्ट वोट हैं, उनमें से जो इलेक्ट हो के आप लोगों ने मुंतखब की है वो डॉक्टर विलायत साहब हैं और हाजी फिदा वज़ीर साहब हैं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदाहुम वहफ़ज़ इमामना अल-खामना वंसुर जयूश अल-मुस्लिमीन। इस तरह से हमारा मजलिस मंदूबीन का पहला मरहला ख़त्म हो चुका है, वो बिज़नेस कमेटी। अब आपकी बिज़नेस कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन लुत्फ़ी साहब, शेख हमीद नासिरी साहब, शेख बशीर शाकिरी साहब, शेख मोहम्मद मुहक्किक साहब, असगर करबलाई, डॉक्टर विलायत और हाजी फिदा वज़ीर हैं। ये 7 मुंतखब होकर आपकी बिज़नेस कमेटी बनी है। और इसके बाद की जो पूरी
आपके मजलिस मंदूबीन की कार्रवाई को कंडक्ट करेंगे। यही 7 नफर कमेटी करेगी। दूसरे मरहले के लिए आपको जाना है, जब ये 7 नफर कमेटी बैठ के अपने में से एक को कन्वीनर मुंतखब करेंगे और एक को सेक्रेटरी मुंतखब करेंगे। ये मरहला आपको नहीं है, ये बिजनेस कमेटी को करना है। इसके बाद दूसरी इजलास जल्दी बुला लेंगे गार्जियन कौंसिल बिजनेस कमेटी का, और जो ही बिजनेस कमेटी के कन्वीनर मुंतखब होगा, फिर बिजनेस कमेटी बैठ के आपके दूसरे मरहले के लिए, जिसमें गार्जियन काउंसिल का मेंबर पैनल बना लेना, वो पैनल बना लेंगे। फिर इसी तरीके से आपको तैयार होना है आखिरी मरहले के वोटिंग के लिए। और जब ये गार्जियन काउंसिल आपकी फाइनल होगी, तो ये जो आउटगोइंग गार्जियन काउंसिल है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा और नए गार्जियन काउंसिल उसकी जगह पे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आप सबों को तकलीफ हुआ, सुबह से आप सभी यहाँ पे आए, अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से आपने अंजाम दी। इंशाअल्लाह सभी मिलके इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और इस इनकलाब के पौधे को अपनी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से बाहर यूटी में, यूटी से बाहर हिंदुस्तान भर में एक मिसाली इदारा बनाने की सभी कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह खुदावंद आलम की तौफीक, पैगंबर गिरामी, अइम्मा मासूमीन, इमाम ज़माना और बिलखुसूस आज के और मेरे दौर में, आज के और हमारे दौर के जो इस्लामी मूवमेंट की क़ियादत कर रहे हैं इमाम उल मुस्लिमीन इमाम खामनाई की क़ियादत में, इस मिशन को आगे बढ़ा के इस परचम को हम सबों को इमाम ज़माना के हाथों में सौंपने की तौफीक इनायत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें बहुत सारे हमारे मीडिया हज़रात को और काउंटिंग करने वालों को, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने वाले पोलिंग के अमला, बिलखुसूस काजिम फ़ोकरी साहब को, जिन्होंने किचन के इंतज़ामात की, उन सबों को और बिलखुसूस आप मंदूबीन का शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।